نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیر ہوں سے ہوں گے ایمان سے اور تقوی سے بہترین حاضر میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے شمار میں رکھیں. آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و السلام اس عظیم ہستی کے نام جو سرور کائنات رحمت للعالمین بن کے آئے اور یہ ان کی بدولت ہمیں اپنے رب کے معرفت ملی. ہم اپنے رب کو پہچاننا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوۂ زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محبت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا. بہترین اخلاق، بہترین محبت کرنے والے، بہترین باپ، بہترین انسان اور بہترین معلم، بہترین دوست، بہترین شوہر، ہر معاملے میں بہترین. اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا دو جہاں جن کی پیروی، جن کی اتباع ہم پہ فرض کر دی گئی. اگر ہم اپنے نبی کی اسوۂ حسنہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر لیڈر ایسا ہے تو امتی بھی، اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے فالوورز جو ہیں ویسے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے مسلمانوں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم، نان مسلم بھی ان کی عزت احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ ان کو کفار بھی سچا، صادق، امین مانتے تھے. اور آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے جو نان مسلم نے بکس لکھی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کا استاد ہے. تو کسی نہ کسی کا استاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ خود معلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تبلیغ، وہ رب نے خود کی، اصلاح خود کی، نصیحت خود کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معلم دنیا میں کوئی بھی معتبر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشرے راہ ہے اور ان کی اسوۂ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکتے ہیں. آج جیسے کہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک میں ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. اور حدیث مبارکہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آٹومیٹکلی ہماری زبانوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتا ہے. اور جمعے کا دن کیونکہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے عبادت کا، تو اس خاص دن پہ خاص ہستی کا ذکر کرنا افضل ترین اعمال میں شامل ہوتا ہے. جمعے کا دن جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جمعرات کی مغرب کی نماز کے فوراً بعد تو درود و سلام پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. جمعے کے دن اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد میں جانا بہت افضل عمل ہے. خوشبو لگانا، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جانا، غسل کرنا، یہ سارے جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. اور جب ہم دیکھیں ہر انسان اپنی ذات میں ایک مکمل انسان نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے ذات جس میں کوئی بھی اللہ
वसल्लम की सुन्नत को उजागर करते हुए आज हम सबसे पहले, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक में सबसे पहले हम हदीस मुबारक को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3559। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अखलाक किसका हो सकता है? बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बेहतरीन उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हम बेहतरीन उम्मत तब बनेंगे जब हम अस्वाए हुस्ना पे अमल करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। हमारा अखलाक जो है सबसे अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ पता क्या होता है, अक्सर खवातीन बहुत जज्बाती होती हैं, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल 1% होगी जो सब्र का मुजाहरा करते, वरना 99% खवातीन ऐसी हैं कि वो जल्दबाज होती हैं। कोई बात करे तो फौरन जवाब, कोई बात हो जाए तो फौरन रिएक्ट करके दिखाना। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अखलाक ये नहीं है कि कोई हंस के बुलाए तो आगे से हंस के बोलना है, ये अखलाक नहीं है। अखलाक ये है कि आपके सामने कोई आपके मिजाज के खिलाफ, मिजाज से बरक्स काम करे, बात करे, तो आप उसको बर्दाश्त करो। उसके मुंह पे, यानी कि फर्ज करो उसने बात की तो उसको हथौड़े के साथ जवाब ना दो, या ईंट का जवाब पत्थर के साथ ना दो, दरगुजर कर दे, कोई बात नहीं, इसको एहसास होगा। और वाकई में होता है एहसास, ये नहीं है कि हम कहें कि हम तो इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं खानदान वालों के साथ, तो खानदान को एहसास ही नहीं होता। होता है एहसास, एक ना एक दिन जाके ये एहसास इंसान को शिद्दत से महसूस होता है कि फलां जो बंदी है ना, बड़ी सब्र वाली है, इतना कुछ हुआ उसके माथे पे शिकन नहीं पड़ी। और वहां पे इंसान जो है अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई हो ना वो हासिल कर लेता है। अपने आप को सिर्फ इतना समझाएं कि अगर मैं जवाब दे दूंगी, ये मेरी बात, अगर मुझे किसी ने कड़वी कोई बात की है, मैं इसका जवाब दूंगी भी तो बात तो वापस नहीं होगी। तो बेहतर ये नहीं है कि मैं अल्लाह से अजर हासिल कर लूं, दरगुजर कर दूं, मुआफ कर दूं। उसे खुद ही एहसास हो जाएगा। कोई एक दफा आपके साथ गलती करेगा, बदतमीजी करेगा, कोई बात हो जाए, कोई नोक चोक हो जाए, कुछ ऐसी तनकीद करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके अखलाक से मुतासिर होके आपका, जैसे होता है ना एक फैन बन जाना और मोहब्बत रखना दिल में, वो नफरत, वो बुग़्ज़, वो सब कुछ एक टाइम आएगा वो सारी चीजें मोहब्बत में बदल जाएगी। और यही हमारे नबी की सुन्नत है कि हम बुरे के साथ भी अच्छा रवैया रखें, ताकि उसे एहसास हो मैं तो बुरा ही करता हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे साथ हमेशा अच्छा करता है। तो अच्छे अखलाक उसी के पास होता है ना जो अपने नबी से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये सुन्नत है। अच्छे तरीके से बात करना, अखलाक के साथ बात करना, बड़े को अदब करना, छोटों से मोहब्बत करनी। कभी माँ या सास या बड़ा इंसान कोई भी फैमिली में कुछ कह भी दे तो कहे कोई बात नहीं, मेरी इस्लाह के लिए बात की है ना, फर्ज करें वो बात गलत भी हो, उनको जी कह के बात खत्म कर दें। तो ये इखलाक आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जब हम अच्छे इखलाक से किसी से बात करते हैं ना तो दिल नहीं दुखता, और जब दिल नहीं दुखता तो कोई किसी के लिए बुरा भी नहीं चाहता, और जब बुरा नहीं चाहता तो उससे लाजमी सी बात है इंसान के अमाल बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतरीन इखलाक करने वाला बना दे, इखलाक से अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों से बात करने वाला बना दे। हमारे हमसाए हमारी ज़ुबान के शर से महफूज रहें, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे शर से, हमारी ज़ुबान के शर से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आगाज़ करते हैं अब अपनी क्लास का। आज की जो आयत मुबारक है
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाज़िल करके हम पे बहुत बड़ा एहसान अजीम किया। अगर ये कुरान ना होता तो हमें कैसे पता चलता अच्छे लोगों का अंजाम क्या है, बुरे का क्या है। हमने पिछली आयत मुबारक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि उनकी निशानियां क्या होंगी, कि वो बचपन में यानी कि माँ की गोद में बात की उन्होंने और नेक साले लोगों में से होगा। आगे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला से डायलॉग कर रही हैं, वो क्या कहती हैं। आगाज करते हैं आज की आयत नंबर 47 और 48 का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी अन्नी, कैसे, यकूनो, होगा, ली, मेरे लिए, वलदुन, लड़का, वलम, हालांकि के नहीं, यमससनी, लगाया, हाथ लगाया मुझे, बशर, किसी बशर ने, कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिका, इसी तरह, अल्लाह, अल्लाह ताला, यखलुकु, पैदा करता है, मायुशाउ, जो वो चाहता है, इज़ा, जब, अज़ा, वो फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो यकीनन, यकूलु, वो कहता है, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है, वो युअल्लिमु, और वो सिखाएगा उसे, किताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व तौराता, और तौरात, वल इंजील, और इंजील। ये थी आज की हमारी दो आयत मुबारका। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। यमससनी, हाथ लगाया मुझे, मीम सिन सिन इसका रूट वर्ड है, बशरुन, किसी बशर ने, बाशिन रा इसका रूट वर्ड है, यखलुकु, पैदा करता है, खालाम काफ इसका रूट वर्ड है, कदवा, वो फैसला करेगा, काफ, द्वात या इसका रूट वर्ड है, अमरन, किसी काम का, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है, कुन, हो जा, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, फयकून, तो वो हो जाएगा, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, वह युअल्लिमुहु, और वह सिखाएगा उसे, ऐ लाम मीम इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के रूट वर्ड। अब हम देखते हैं इससे मुख्तसर सी तफसीर। قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि किसी बशर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन वो उसके लिए कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि किसी बशर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों कही। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि किसी बशर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम ने दूसरे इंसानों की तरह रोजमर्रा की जिंदगी के सिलसिले के असबाब के आदि होने की वजह से ये कह दिया कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। यानी कि उनके माइंड में ये था कि मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मर्द मेरे पास है नहीं, तो मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, शादी होगी, मर्द छुएगा तो ही बच्चा होगा। अब उनका ये नहीं था कि उनको अपने रब की बात पे यकीन नहीं था, यकीन था, लेकिन दुनियादारी यानी कि दुनिया के असूल जो चले आ रहे थे, उस असूलों को देखते हुए उन्होंने सवाल किया। हालांकि वो जानती थी, लेकिन ये बात उनके लिए मुअम्मा बन गई, जिसके हल के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। अल्लाह ताला के आम कानून यही है कि मर्द से तल्लुक के बगैर औलाद नहीं होती। ये बात मरियम ने तअज्जुब के तौर पर फरमाई, अल्लाह ताला की कुदरत पर शक करते हुए नहीं फरमाई। कज़ालिका क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाया कि उसी तरह, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है
अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया कि ये वो से है, उसे पैदा करने वाला वो है जो किसी काम का कहता है हो जा तो वो हो जाता है। इन अल्फाज से सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया, अल्लाह ताला जो चाहे पैदा कर सकता है। बस सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के दिल को ढारस बंधाई गई कि अल्लाह ताला का फैसला और उसका इंतखाब है, आपको इस पे मुतमईन रहना चाहिए। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी काम के फैसले करने का जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन वो उसके लिए कहता है हो जा तो वो हो जाता है। उसे किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई? जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन उसके लिए कहता है हो जा तो वो इस कायनात की इब्तिदा की तरफ तवज्जो दिलाई। जिस तरह कायनात कुन हो जा में वजूद में आ गई, तो कोई तो क्या कोई इंसान इस तरह वजूद में नहीं आ सकता? कुन फायाकून से उस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि अल्लाह ताला जब किसी काम का हुक्म दे तो वो हो जाता है, ख्वाह किसी जारी सबब से हो या बेसबब हो। यानी कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के बगैर कुछ ना कुछ भी नहीं हो सकता। और जब रब हमारा कुन कह दे तो फयाकून तो लाजमी है। अपने रब के मौजों का, करामात का यहीं से हमें पता चलता है। हमारा रब हमारे लिए जब कौन फरमा दे तो दुनिया की कोई ताकत फयाकून होने से रोक नहीं सकती। कुल फयाकून हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत दिल की गहराइयों से तक उतर जाती है। इससे इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है और इंसान को अपने ऊपर ताज्जुब होने लगता है कि इतनी सादा सी बात क्यों समझ नहीं आई। अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उसके गोद में कलाम करने की से तकलीफ पर अपनी कुदरत का यकीन दिलाया। अब देखिए, कभी मुमकिन हो सकता है कि हम कहें कि हमारा बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू हो गया, पर इस तरह ऐसी कोई बात आगे कहे तो हम कहते हैं अभी ये लंबी लंबी छोड़ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन नबियों पैगंबरों के ऐसे ही मौजे अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाए ताकि नामुमकिन चीज उनके सामने आए, जिनसे उनको अपने रब का यकीन हो जाए कि हाँ कोई है जो ये सब कुछ करने पे कादिर है। अब देखे ना, एक बच्चा है छोटा, वो बोल नहीं सकता, अचानक वो बोलने लग जाए। हैरान कुन बात है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे बच्चे से गवाही दिलाई कि जो बिल्कुल 1-2 दिन का है, उसने गवाही दे दी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो ये इससे बड़ा मौजा और क्या हो सकता है? और अल्लाह ताला ने अगर वो चाहता तो लोगों के दिलों में ये ख्याल आने ही नहीं देता। नहीं, अल्लाह ताला ने ये सारे काम करके दिखाया, हमारे लिए ये नसीहतें सामने ला के रखें कि अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी शक मत करो और कभी मायूस मत हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ ले, हम ज़करिया अलैहिस्सलाम का पढ़ ले, हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का पढ़ ले, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़े। कुरान पाक में बेशुमार नबियों के वाक़यात हैं। हम कुछ जो भी वाक़या पढ़ेंगे हमें उसमें एक ही चीज़ नज़र आएगी, अल्लाह ताला की कुदरत। अल्लाह ताला कैसे नामुमकिन को मुमकिन करता है। इंसान के तसव्वुर भी वहां पे नहीं जाता। जब अल्लाह ताला अता करने पे आए तो कई सालों की जुदाई लम्हों में खत्म हो जाती, और जब अल्लाह ताला दूर करने पे आए तो गोद से बेटा उतार के दरिया में डाल देता। अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाता है, उसके अमाल के बदौलत, उसकी यानी समझने के वो कितना अच्छा है। अल्लाह ताला उसको कितना पसंद कर रहा है। जितनी आजमाइशें हैं, फर्ज करें आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, अपने मेडिसिन खा खा के
बुरा हाल कर लिया लेकिन आराम नहीं आया। तो सोचे अल्लाह की इसमें कोई मसलत है, क्या बता, मेरा रब मुझे अपनी तरफ बुला रहा है मुसलसल, और मैं शायद उसके मेयार पे पूरी नहीं उतर रही। तो ये जो आजमाइश है ये रब की तरफ जाने के लिए है। तो कितनी खूबसूरत वो आजमाइश लगेगी जो हमें सजदे में ले जाए। कितनी अच्छी बात है, कितनी वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो परेशानी में खुशी में अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। और अल्लाह ताला फिर उनके लिए कुन फरमा देता है, और जब कुन होता है तो फयकून, तो फिर लाजमी है। अल्लाह ताला ने इस बात से कि जब वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है, तखलीक पर अपनी कुदरत का यकीन दिलाया। अल्लाह ताला ज़ाहरी और मादी असबाब के बगैर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मामूली पैदाइश से तखलीक पर अपनी कुदरत का यकीन दिलाया। यानी कि ये मूसा अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिखाया कि जो लोगों को लगता है ना कि ऐसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता, हमने बड़ी कोशिश कर ली, फला के हाँ औलाद नहीं हो सकती, फला बाँझ है, फला ये है। मैं कहती हूँ कोई काम भी दुनिया का नामुमकिन नहीं। अगर आपकी किस्मत में है, रब ने लिखी है, नहीं भी लिखी, तो तकदीरें तो बदलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि तकदीरों को एक ही चीज बदल सकती है, और वो क्या है? दुआ। अब दुआ करें, इंशाल्लाह आपका रब जरूर सुनने वाला है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आपका रब आपकी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। कभी यहाँ पे हलक पे हाथ रख के देखें, आपका सांस उठने लगता है, दम उठता है, इंसान का सांस मुश्किल होता है, ये रगे जान है। और इससे भी ज्यादा करीब है आपका रब, यानी कि आपकी सांस से भी ज्यादा आपका रब आपके करीब। तो क्या वो आपकी बात नहीं सुनेगा? क्या वो आपकी तकदीर बदल नहीं सकता? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तकदीर में बस लिखा नहीं होनी तो क्या करें, अब क्या कोई नहीं है तो क्या करें, फायदा भागने दौड़ने का, होनी होगी तो हो जाएगी। बिन मांगे तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला से आप औलाद मांग रहे हैं। मैंने आप लोगों को वाकया सुनाया था ना, नबी ने आदमी वाला। और जब उसके बादशाह ने उसे बोला कि अगर तुम्हारी कल तक आंखें वापस ना आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो वो जाके खाना काबा रोया था, तो कल आने से पहले उसकी बिनाई वापस आ गई थी। हमें अल्लाह से मांगने का ढंग नहीं है। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे ना, तो यकीन करें हमारी कभी भी दुआएं रद्द नहीं होंगी। एक हम हराम खाना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरा ये कि हम अपने रब को मनाना सीख लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ अपने आप को पाबंद करने की बात है। अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीख लें। आपका रब सिर्फ आपका है। कभी अपने आप को उस मैयार पे ला के तो देखें। आप ये समझे तो सही कि मेरा रब सिर्फ मेरा है। फिर देखें कैसे दुआएं कबूल नहीं होती। हर दुआ कबूल होती है। इस दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ हमें अपने रब से मांगना नहीं आता, अपने रब को अपनी बात समझाना नहीं आता। इतनी सी बात। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे के बारे में खुशखबरी दी कि वो क्या करने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला उसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला उसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाने से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि मैं जो बेटा तुम्हें दे रहा हूँ, अल्लाह ताला उसे किताब का इल्म, यानी कि उसके पास अंजील होगी, तौरात का उसे इल्म होगा,
اس لفظ میں کتاب جنس مراد ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا۔ علم دینے میں الفاظ اور معنی دونوں شامل ہیں۔ الکتاب سے کتاب یعنی کہ لکھنے سے مراد علم ہو سکتا ہے، حکمت سے مراد شریعت کا علم ہو سکتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے کا علم ہو سکتا ہے۔ حکمت سے مراد ایسا علم نافع جو انسان کو احکامات کی سمجھ اور شریعت کے راز سمجھاتا ہے۔ والحکمت سے مراد سردار شریعت کا علم ہے اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنے کا علم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسانات بیان فرمائے کہ انہیں لکھنا سکھایا اور علم اور حکمت سے نوازا۔ یہ انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والا کمال ہے۔ حکمت انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والا کمال ہے، اس سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔ والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تورات انجیل سکھانے کا سبب یہ تھا کہ تورات میں شریعت کے احکامات تھے اور انہیں نئی شریعت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو موسیقی طور پہ پیدا کیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے کم علم لوگوں کے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ گمراہی کا باعث بنا دیا۔ ان کے علم یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو۔ ان کا یہ تھا ماننا کہ اللہ نے اگر دیا ہے، روح اللہ کہلایا ہے، تو اللہ کی روح ہے نا، اللہ کا بیٹا ہی ہوا نا، نعوذ باللہ۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، روح بھی اپنی ڈالی تھی، ماں بھی نہیں تھی، تو وہ تو زیادہ بیٹے نعوذ باللہ بننے کے حقدار ہوئے نا۔ حضرت مریم علیہ السلام تو ماں کے طور پہ تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اگر نیک انسان جو ایمان والے تھے ان کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا موضع ہے، یہ نبی ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ موضات کے ساتھ آتے ہیں، ایک آدھا موضع نہیں ہوتا، ان کے بے شمار موضے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے ہی موضے تھے، وہ نبی نو کو بینائی لٹا دیتے تھے، مادری کوڑے جو پیدائشی کوڑے ہوتے تھے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، پیدائشی جن کی ہوتی تھی وہ ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ اصل بن کے اڑنے لگتا تھا۔ یہ موضے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ آج کل کے دور پہ ہر 2 نمبر بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی لٹیں رکھ کے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا منتر پڑھتے ہیں اور کیا کیا 2 نمبری کام کر کے تو ایک دو کرتب کر کے دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کا ولی تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمارے دل میں اللہ کی محبت جاگتے ہیں۔ جیسے کہ امام کعبہ ہو گئے، ہم امام کعبہ کی جب تلاوت سنتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے کہ کاش ہم ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ میں جب عمرہ کرنے گئی تو میرے ابو میں اپنے ابو کے ساتھ گئی، اور وہاں پہ جب ہم پہنچے تو مغرب کا ٹائم پہنچے تو خیر ہم صبح 7 بجے تھے، لیکن پہلی جو میں نے قرات سنی خانہ کعبہ کی وہ قاری اسود صاحب کی تھی، اور یقین کریں میرا اتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان سے برداشت نہیں ہو رہی آواز، اس قدر خوبصورت، اور میں روئی جا رہی ہوں روئی جا رہی ہوں، اور اتنا سکون اور اتنی خوشی مجھے کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے جن کی آواز سن کے آپ کو اللہ کی یاد آئے، اپنے گناہ یاد آئے، اللہ سے محبت ہو جائے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کئی کئی دن نہاتے نہیں اور بے لباس اور برے حال اور
माल डाले हैं क्या जी, इससे वजद आया हुआ। दीन मोहम्मदी में ऐसा कोई सीन नहीं है, ना बेलबास रहने का, ना वजहदारी करने का, ना नाचने का, ना गाने का, ना सिगरेट पीने का, ना हुक्का पीने का, ना चर्च पीने का, ना भांग पीने का। ये कोई चीज भी अलाउ नहीं है। और जो ये काम करते हैं वो अल्लाह के वली नहीं, वो शैतान के दोस्त होते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो तो बहुत नेक पाक साफ अखलाक वाले होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफी अता फरमाए और हमें ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जिनको देख के अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ पे बैठना पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक है, ऐ अल्लाह जो भी यहाँ पे हैं और जो क्लास व्हाट्सएप पे ले रही हैं, जो मेरी दूसरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह उनकी सबकी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह डॉक्टर राहत जबी के बेटे मोहम्मद मुश्तबा को उसकी माँ से मिला दे। ऐ अल्लाह उसकी माँ बहुत परेशान। ऐ अल्लाह तू तो जानता है उनकी कफियत को, उन्होंने स्पेशल कहा है। ऐ अल्लाह हमारी लाज रख ले। आज उनके लिए उनके हक में दुआ कबूल कर ले, उसका बेटा खैर वाफियत से अपनी माँ से मिला। अल्लाह तो हर चीज पे कुदरत रखता है, तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। आज हमने पढ़ा है तू जो चाहे कर सकता है, जब तू कुन कह दे फयाकून हो जाता है। अल्लाह हमारी दुआ पे कुन फरमा के टाका राहत जबी जो मेरी बड़ी बहनों जैसी है, अल्लाह उसके बेटों को खैर वाफियत से घर पर वापस भेज दे। अल्लाह अपनी माँ से मिलवा दे, उसकी माँ की आंखों की ठंडक वापस फरमा दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दूसरी क्लास आज नहीं होगी, फ्राइडे है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं दूसरी क्लास नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम।